السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دیباچہ، ایپیسوڈ 31. اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا تو اندر کا سارا منظر واضح ہوا. ساری بتیاں روشن تھیں، کھڑکیوں سے پردے ایک طرف کو کیے ہوئے تھے. اس کی نظر صوفے کی جانب گئی جس کے ہتھے پر سر رکھے وہ گہری نیند کے آغوش میں ڈوبی تھی. اسے دیکھ کر براق کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان پھیل گئی. نیلی آنکھوں میں نمی بھی مزید بڑھ گئی. وہ صوفے کی جانب بڑھا اور اس کے بالکل سامنے جا کر رک گیا. پھر گھٹنوں کے بل فرش پر بچھے سیاہ مخملی قالین پر بیٹھ گیا. اس نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا. وہ کتنے دنوں بعد اس چہرے کو بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. اس نے بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. براق نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا. وہ براق کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گئی. مرحبا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو نینا فوراً حیرت زدہ سی ہو کر صوفے سے نیچے اتری اور اسے چند قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی. براق بھی اسے دیکھ کر کھڑا ہوا. نینا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی. وہ ابھی تک بے یقینی کا شکار تھی. براق سینے پر بازو لپیٹے اسے محبت سے بھری نگاہوں سے تکتا رہا. اسے اب یقین آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی. جلدی اس کے گلابی رخسار سرخ پڑنے لگے اور سیاہ آنکھوں میں سے برسات شروع ہو گئی. وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس گئی. براق نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. براق اس کے سیاہ بال سہلانے لگا اور ساتھ ہی اس کی نیلی آنکھوں میں سے بھی برسات شروع ہو گئی جسے وہ اس سے چھپانا چاہ رہا تھا. واللہ واللہ میری سلطانہ نے مجھے اتنا مس کیا تھا، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو نینا مزید رونے لگی. وہ اس کی کمر سہلانے لگا جیسے اسے چپ کروا رہا ہو، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں سے برسنے والی بارش تھم نہیں رہی تھی. تم نے مجھے رلا دینا ہے اب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ تو پہلے سے ہی رو رہے ہیں. پھر ہلکا سا مسکرائی اور انگلی کے پور سے آنکھ صاف کی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی اشک بہا رہی تھیں. میں رو نہیں رہا، یہ تو بس شکر کے آنسو ہیں کہ اللہ نے مجھے میری نینا سے دوبارہ ملوا دیا. اس نے یہ کہتے ہوئے نینا کی پلکوں پر موجود موٹے موٹے آنسو صاف کیے. میں اب کہیں نہیں جاؤں گی براق، وہ بچوں کی طرح سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا. اس کی سیاہ آنکھوں میں گویا اپنی نیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی. براق کی نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں. اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھا کر براق کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے اب کی بار براق کی نم آنکھیں باری باری صاف کیں. جواب کیوں نہیں دے رہے تھے میرے کسی بھی کال یا میسج کا؟ لہجے بھر کے بعد اس نے کچھ شکوہ کن انداز میں پوچھا. وہ جواباً معنی خیز انداز میں مسکرایا. ویسے ہی، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا. اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے. نینا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی. کیوں؟ اس کے ابرو نہ سمجھی اور حیرت سے اکٹھے ہوئے. دل کر رہا تھا. جواب شاندار پورے اعتمادی کے ساتھ دیا گیا. وہ اب اسے زج کر رہا تھا. یہ بات میں بھولوں گی نہیں، دیکھنا میں بدلہ لوں گی، اس نے گردن اونچی کر کے کافی دھمکانے والے انداز میں کہا. پھر زیر لب مسکرائی. واللہ میری سلطانہ مجھ سے پورا حساب لے سکتی ہے، ہم آپ کو بالکل بھی نہیں روکیں گے. اس نے نینا کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام لیے. اور اگر روکا تو؟ سوال چند لمحے بعد پوچھا گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے کافی یقین سے کہا. وہ کیوں؟ آخر کوئی اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو روک سکتا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے بے حد رومانوی انداز میں کہا. وہ کھل کر مسکرا دی. براق نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا. سلطان اور سلطانہ کے کمرے کی بے رونقی ویرانی اب بالکل ختم ہو چکی تھی. اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد جیمرے خاتون لیونگ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں.
नैना और बुर्राक भी उनके साथ ही लिविंग रूम में मौजूद थे। आज इतवार था, इसीलिए बुर्राक घर पर ही था, लेकिन उसे दोपहर में कुछ देर के लिए धुंधार बे से मुलाकात करने के लिए जाना था। वो उससे मिलना चाहते थे, उसे मुबारकबाद देना चाहते थे कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा। जैमरे खातून रिमोट एक हाथ में पकड़े एक के बाद एक चैनल बदल रही थी कि तभी एकदम उनके हाथ रुक गए। वो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर उस वक्त ये खबर चल रही थी कि बुर्राक यामान, तुर्की की फ़ौज के काबिल और इंतहाई ज़हीन कमांडर इन चीफ़ ने ओनोर जैसे दहशतगर्द और गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाया। और सिर्फ यही नहीं, इतने सालों बाद ये खबर भी सामने आई कि कारा बे का कत्ल भी ओनोर ने ही किया था, क्योंकि वो बुराई की दुनिया से पलट आया था। न सिर्फ ये, बल्कि ओनोर जैसे शैतान ने कारा बे को मारकर उसके बेटे को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उसे ये बताए बगैर कि वो ही उसके बाप का असल कातिल है। जैमरे खातून के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया। वो बिल्कुल साकिन सी रह गई थीं। बुर्राक सोफे से उठकर उनके पास जा खड़ा हुआ और नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। नैना जैमरे खातून के साथ ही सोफे पर बैठी थी। वो भी ये खबरें सुनते हुए बहुत हैरान हो रही थी। कमांडर इन चीफ बुर्राक यामान ने जब मराद कारा बे को हकीकत से आगाह किया तो वो पछतावे का शिकार हो गया और इसीलिए उसने बुर्राक को ओनोर से बचाते हुए खुद गोली खाई और उसकी मौत मौके पर ही वाक़ई हो गई। यहाँ नाजरीन को एक और बात हम बताना चाहेंगे कि मराद कारा बे वही शख्स है जिसने कमांडर इन चीफ बुर्राक यामान की बहन को कत्ल किया और मराद कारा बे के बाप ने बुर्राक यामान के बाप को कत्ल किया। इस सब के बावजूद भी कमांडर इन चीफ बुर्राक यामान ने खुद ये कहा है कि वो मराद कारा बे और उसके बाप को माफ़ करते हैं। टीवी पर वो न्यूज़ कास्टर कह रही थी तो जैमरे खातून ने एकदम टीवी बंद कर दिया और खौलती हुई और कर्ब से भरी निगाहों से बुर्राक को देखा। बुर्राक ये नहीं बताना चाहता था कि मराद ने मीराए का कत्ल किया, लेकिन जब कई सहाफ़ी उससे मालूमात लेने आए तो उस वक्त धुंधार बे भी वहीं थे और उन्होंने ही सहाफ़ियों को इस बारे में बताया। तब बुर्राक उन्हें रोक नहीं पाया था और ना ही बुर्राक बे ये जानते थे कि बुर्राक ने ज़्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं बताया। उनके बताने की वजह से ही ये बात सबके सामने आ गई थी कि मराद कारा बे ने ही मीराए यामान का कत्ल किया। आने अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अगर हम उसके बंदों पर रहम नहीं करेंगे तो वो हम पर रहम नहीं करेगा। उसने बेहद नरमी से उनका हाथ थामते हुए कहा। वो जवाबन नम सी आंखों के साथ लब काटते उसे देखती रहीं। मराद मुझे बचाते हुए इस दुनिया से चला गया, आप उसे माफ़ कर दें। उसने कुछ इल्तिजाया अंदाज में नरमी से कहा, मैं अपनी बेटी के कातिल को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने अल्फाज पर जोर देते हुए वो पैर पटकते लिविंग रूम से बाहर जाने लगी। उनकी आंखें बरसना शुरू हो गई थीं। मैं अपनी आने को जानता हूँ, वो उसे माफ़ कर देंगी, उसने काफ़ी यकीन से नैना को देखते हुए कहा। उसने जवाबन मुस्कुरा कर हल्का सा सर हिला दिया। वो अब सोफ़े से उठकर जैमरे खातून के कमरे में जाने लगी कि तभी बुर्राक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उन्हें कुछ देर अकेला रहने दो, वो अभी बहुत अपसेट हैं, उसने नर्म से लहजे में कहा। नैना ने बस ओके कहा और फिर उसके साथ सोफ़े पर आकर बैठ गई। उसे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बुर्राक से क्या कहे। चंद दिन बाद उफ़क़ पर रात के तारीक साए हर सू फैले थे। आज आसमान तारों से भरा था और दरमियान में पूरा गोल चांद रोशन था। फ़ज़ा में हल्की सी खुनकी भी शामिल थी। वो दोनों नेटेस्टोरियम में मौजूद थे और उस वक्त नेवी ब्लू कलर की ड्रेस शर्ट जिसके कफ मुड़े हुए थे और स्याह जीन्स में मलबूस था। उसके साथ बैठी नैना भी नेवी ब्लू कलर के लंबे रेशमी फ़्रॉक में मलबूस थी। वो अपना सर बुर्राक के कंधे पर रखे हुए आसमान पर रोशन सितारों और चांद को देख रही थी। उसके पूरे खुले बाल एक तरफ को गिर रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब, उसने आसमान को देखते हुए सहरज़दा सा होकर कहा। बुर्राक ने ताईदी अंदाज में हल्का सा सर हिला दिया। एवत, बहुत खूबसूरत। उसकी निगाहें नैना के खूबसूरत और मासूम से चेहरे पर जमी थीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही बुर्राक, उसने सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
सर वापस उसके कंधे पर रख लिया। लेकिन मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ और करूँगा, उसने दो टोक लहजे में कहा और फिर मुस्कुराया। तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी तारीफ़ें करे? उसने पूछा तो वो मुस्कुराई। मुझे आखिर क्यों नहीं अच्छा लगेगा? उफ़क़ पर रोशन चांद को देखते हुए उसने सवाल पर सवाल कर डाला। बुर्राक ने नरमी से उसके बाल सहलाए। नैना, उसने पुकारा तो उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। वो जब मुस्कुराती तो उसकी ठोड़ी पर एक गड्ढा सा बन जाता। बुर्राक के लिए उसकी आंखों के बाद उसकी ठोड़ी पर बनने वाले उस गड्ढे से निगाहें हटाना बेहद मुश्किल हो जाता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसने नरमी से उसकी ठोड़ी छूते हुए कहा। हमेशा की तरह उसकी निगाहें झुक गईं, रुखसार सुर्ख पड़ गए। सुल्तान को सुल्ताना की यही अदा बेहद पसंद आई थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बुर्राक, उसने जवाबन कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुर्राक उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को सहरज़दा सा होकर देखता रहा। आज वो दोनों अगर एक दूसरे को ये कह रहे थे तो उनके दिल में पहले की तरह ही मुसर्रत और मोहब्बत की कई लहरें छाई थीं। पिछली मर्तबा की तरह गम और तकलीफ़ नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सर दोबारा से उसके कंधे पर रख लिया और पूल में मौजूद नीले पानी पर रक्स करती हुई चांद की रोशनी के दिल फरेब मंजर को देखने लगी। नैना, तुम्हारा हनीमून का क्या प्लान है? और ये सुनकर उसने एक बार फिर उसके कंधे से सर उठाया और उसका चेहरा लहजे भर के लिए बेयकीनी के आलम में देखने लगी। क्या? उसकी आंखें हैरत से फैली थीं। हैरान होना बनता भी था। उनकी शादी के इतने दिनों बल्कि महीनों बाद उसे हनीमून की याद आई थी और वो अब जैमरे खातून को अकेला कैसे छोड़ सकते थे? उनकी तबीयत आए दिन ख़राब रहती थी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उसके हैरान होने की वजह जानते हुए भी उसने पूछा। हैरान होने वाली बात है, हम आने को अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? उसने हैरान होने की सिर्फ एक वजह बताई। बुर्राक दूसरी वजह भी अच्छे से जानता था। किसने कहा हम आने को अकेला छोड़कर जाएंगे? उसने हल्के से कंधे उचका दिए। नैना नासमझी से उसका चेहरा देखती रही। मैं कुछ ही दिन में कपाडोकिया जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है मुझे। मैंने सोचा तुम्हें और आने को भी साथ ले जाऊं। उसने बेहद साफ गोई से कह डाला। उसे अब सारी बात ठीक से समझ आई। अच्छा, मैं सोचती हूँ। सब समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर उसने उसके चेहरे से नज़रें हटाईं और कुछ सोचने लगी। तमाम, सोचो, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, उसने कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखते हुए कदरे तहक्कुम से कहा। नैना के चेहरे पर नागवारी की कई लहरें उभरी और उसने कुछ गुस्से से बुर्राक को देखा। ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी कैसे सोचा जाएगा? उसका लहजा तेज था। ये कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है, इसीलिए सिर्फ 10 मिनट दिए हैं, उसने ज़रा से अब्रू उचका कर कहा। फिर ज़ेरे लब माना खेज अंदाज में मुस्कुराया। नैना एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसने हाथ थोड़ी के नीचे टिकाया और पूल में मौजूद नीले पानी को एक बार फिर देखने लगी। बुर्राक उसके जवाब का मुंतज़िर था। नैना अब आसमान पर रोशन चांद को देखने लगी। उसने तंग आकर कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखा। अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे। वो अब मुतज़ब्ज़ब से अंदाज में उसका चेहरा देखे गया। ठीक है, हम चलेंगे, उसने पूरे 10 मिनट बाद ही अपना फैसला सुनाया। बुर्राक ने एक गहरी सांस अंदर को खींची और फिर खुलकर मुस्कुरा दिया। नैना दोनों हाथों पर अपनी ठोड़ी गिराए मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखती रही। तो बस डन हो गया, 2 हफ्ते बाद हम कपाडोकिया चलेंगे, उसने दोनों हाथ हल्के से फ़ज़ा में लहराते हुए कहा। डन, नैना ने ताईदी अंदाज में सर हिला दिया। वो हनूज़ मुस्कुरा रही थी। वो भी खुश दिली से मुस्कुरा रहा था। यूँ मुस्कुराते हुए उसकी निगाहें कभी उसकी स्याह आंखों को देखती तो कभी उसकी ठोड़ी पर बनने वाले उस नन्हे से गड्ढे को। सुल्ताना ने सुल्तान के कंधे पर अपना सर रख लिया। दिल को बेहद सुकून मिला। सुल्तान ने उसके इर्द गिर्द अपने बाजू फैला लिए। वो दोनों उफ़क़ पर रोशन चांद को देख रहे थे। स्याह आंखें और नीली आंखें काफ़ी रोशन थीं।
दोनों के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैली थी। बुर्राक, एक बात पूछूं? कुछ देर बाद उसने पूछा। नहीं, बुर्राक ने फौरन मुस्कुरा कर कहा। वो हंस पड़ी। जब तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कुछ भी पूछने से मना नहीं करता, फिर क्यों बार बार इजाज़त लेती हो? उसने मजीद कहा। नैना ने सर उठाकर उसका चेहरा देखा। वैसे ही मुझे मज़ा आता है, फिर कंधे उचकाते हुए कहा और मुस्कुरा दी। अच्छा खैर, पूछो तो सही जो तुम पूछना चाह रही थीं। जब नैना ने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, हाँ, मैंने पूछना था कि। उसने छोटा सा वक्फा लिया। आपने मुझे प्रपोज़ किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। यूं एकदम प्रपोज़ करके आपको नहीं लगता आपने कुछ जल्दबाजी की थी? उसने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाए। बुर्राक उसका चेहरा देख कर रह गया। मतलब मैं इनकार भी तो कर सकती थी, आपने थोड़ा सब्र क्यों नहीं किया? उसने मजीद कहा। बुर्राक ने एक गहरी सांस ली। सच बताऊं? फिर पूछा। ऑफ कोर्स, उसने तुरंत कहा। मैं इनसिक्योर हो गया था। उसने हल्के से शाने उचकार कर काफ़ी पुरसुकून लहजे में कहा। नैना एकदम काफ़ी हैरान हुई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट? इनसिक्योर? और आप? क्यों? मैं नहीं मान सकती। वो बेयकीनी के आलम में तेज़ तेज़ लहजे में कह रही थी। ये सच है, मैं इनसिक्योर हो गया था। जिस दिन तुम नकाब में उस रेस्टोरेंट में आई थी तो तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं कुछ गलत समझा, और उस दिन मुझे शदीद गुस्सा आया था। तुम्हें किसी और के साथ देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इत्मीनान से कह रहा था तो नैना के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया। लेकिन कुछ ही देर में मुझे समझ आ गई थी कि तुम्हारा उस शख्स से मिलने का मकसद कुछ और था। उसने मजीद कहा। और वो कैसे? नैना के अबरू हैरानी, बेयकीनी और नासमझी के आलम में सुकड़े थे। मैं तुर्की की फ़ौज का कमांडर इन चीफ हूँ। मेरे लिए ये मालूम करना बहुत आसान है। उसने शानदार पुरएतमादी और यकीन के साथ शाने उचका कर कहा। वो उसका चेहरा देखती रही। ओके, तो मतलब आप इनसिक्योर हो गए थे, इसीलिए आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में प्रपोज़ किया, ये जानने के बावजूद भी कि उस दिन मैं जिस शख्स से मिली उसके और मेरे दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं था। उसने चंद लम्हे बाद कदरे संजीदगी से कहा। एवत, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो, या फिर अगर मैंने देर कर दी तो। इसीलिए मैंने मज़ीद कुछ सोचे बगैर डायरेक्ट तुमसे शादी कर ली। सिंपल। उसने उसी साफ गोई से कहा जो उसकी गुफ्तगू में हमेशा झलकती। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि तुम्हारा किरदार बहुत बुलंद है। याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं रात तक घर आ जाऊंगा, इसीलिए तुम मुझे देखकर हैरान हुई थी, और हैरान से ज़्यादा परेशान। मैं जान गया था कि तुम मेरे होते हुए मेरे घर नहीं आना चाहती थीं। वो कह रहा था तो वो उसे खामोशी से सुन रही थी। और उसकी वजह यही थी कि तुम नामहरम अफराद से यूं ही नहीं मिल लेती, सिर्फ ज़रूरत के तहत ही तुम उनसे मिला करती हो। शादी से पहले मेरी तुमसे जब भी कोई बात हुई, तुम्हारा अंदाज़ हमेशा बेहद शाइस्ता होता। वो मीठा मीठा सा लहजा जो औरतें सिर्फ मर्दों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए रखती हैं, वैसा लहजा तो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं था। कदरे तवक्कुफ से उसने मज़ीद कहा। मैं लोगों के लहजे और अंदाज से ही पहचान जाता हूँ कि उनका किरदार किस तरह का है। उसने अपनी बात मुकम्मल की। नैना तशक्कुर भरे अंदाज में मुस्कुराई। उसकी आंखें नम सी हो गईं। बुर्राक की बातें हमेशा की तरह उसके दिल को राहत बख्श रही थीं। वो दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए राहत का बायस बना करते। खैर, तुमने क्यों फ़ौरन हाँ कर दी? इस सवाल की तवक्का उसे न थी। मैंने? उसने लहज़े भर के लिए कुछ सोचा। मैंने क्यों फ़ौरन हाँ की? उसका जवाब मैं भी नहीं जानती। फिर हल्के से कंधे उचका दिए। ज़ेरे लब एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। बुर्राक ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसने नज़रें चुरा लीं। वो अगर ना भी नज़रें चुराती तब भी उसे मालूम था कि वो सच नहीं बोल रही। झूठ। सच बताओ नैना,
मैंने भी तो सच बताया है ना, उसने इसरार किया। नैना ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, क्योंकि मैं भी आपको खोना नहीं चाहती थी। बुर्राक फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं जानता था। और उसने फखरी अंदाज में अबरू उचका दिए, साथ ही नरमी से उसके स्याह बाल सहलाए। तो फिर पूछा क्यों? सवाल तुरंत से पूछा गया, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। जवाब भी तुरंत से दिया गया। वो दोनों खुलकर मुस्कुरा दिए। वैसे तुमने ये सवाल आज ही क्यों पूछा? लहजे भर के बाद बुर्राक ने पूछा। मैं ये सवाल काफ़ी अरसे से पूछना चाह रही थी, मगर हर बार जहन से निकल जाता था। उसने जवाब दिया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद नैना के जहन के पर्दों पर कुछ उभरा। उसने एक गहरी सांस अंदर को खींची। चेहरे पर बहुत से तासुरात बिखर गए। आप जानते थे ना बुर्राक? उसने बेहद संजीदगी से पूछा। बुर्राक जानता था कि वो अब किस बारे में बात कर रही है। क्या? वो अनजान बना। उन खबरों के बारे में जो मेरे बारे में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर फैलाई जा रही थीं। उसने कहा तो बुर्राक ने कोई जवाब ना दिया। नैना ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर बहुत कुछ था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो जानती थी कि वो उसे क्यों नहीं देख रहा था, कि कहीं वो उसकी आंखें ना पढ़ ले। लेकिन वो सुल्तान की सुल्ताना थी। वो उसका चेहरा तक पढ़ सकती थी। ऐवत, उसने और कुछ ना कहा। वो अभी भी उसे नहीं देख रहा था। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इस बारे में जानते हैं? उसने नज़रें झुकाते हुए रुक रुक कर पूछा। अब की बार बुर्राक ने उसे देखा, फिर नरमी से उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। इसीलिए कि तुम मेरे सामने अपना सर मत झुकाओ, उसने ताज्जुब से कहा। नैना मुस्कुराई तो उसकी आंखें बेहद नम हो गईं। बुर्राक जानता था कि अब उसकी स्याह आंखें बरसने वाली थीं, इसीलिए उसने उसे सीने से लगा लिया। बरसात अब जारी हो चुकी थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रही थी कि उसे अल्लाह ने इस कदर अच्छे, लफ्ज़ अच्छा उसके लिए कम था, आदमी की बीवी बनाया। वो भी हमेशा की तरह अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे अल्लाह ने इतनी बावकार, बाकिरदार और इतनी अच्छी, उसके लिए भी लफ्ज़ अच्छा कम था, हम सफ़र अता की। रोज़ वैली, कपाडोकिया, तुर्की। आफाक पर हर सू खूबसूरत सी नीलाहट फैली थी। छोटे छोटे सफ़ेद बादलों के टुकड़े भी आफाक पर मंडला रहे थे। फ़ज़ा में आज हल्की हल्की ठंडी हवा भी रक़्स कर रही थी। ऐसे में तुर्की के शहर कपाडोकिया में रोज़ वैली वादी में निगाह दौड़ाओ तो हर तरफ मुनफरिद चट्टानें दिखाई देती, जिनमें दिलकश गारों में रिहाइश गाहें और गिरजाघर बनाए गए हैं। इन गारों को कदीम तहजीबों ने तख्लीक किया। ये अक्सर पेचीदा फ्रेस्कोस से मुज़य्यन होते हैं और इलाके के भरपूर तारीख़ी और सकाफ़ती माजी की झलक पेश करते हैं। ये वादी अपने शानदार मनाजिर और मुनफरिद अर्जियाती तश्कीलात के लिए मशहूर है। इस दिलकश वादी का नाम इन गुलाबी और सुर्ख रंगों की वजह से रखा गया है जो यहाँ मौजूद पत्थरों और चट्टानों पर होते हैं। ये वादी अपनी परियों की चिमनियों, समेटने वाली पगडंडियों और चट्टान से कटे हुए गिरजाघरों की तरफ से खासी मशहूर है, जो एक गैर हकीकी तजुर्बा पेश करती है। इस वादी के नरम गुलाबी रंगत वाले टफ चट्टान उन गारों के ढांचे की कुदरती फनकारी के साथ मिलकर एक मसूर कुन असर पैदा करते हैं। इन गारों को तलाश करने से पोशीदा चैम्बर्स, सुरंगों और पुरसुकून जगहों के बारे में मालूम होता है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वादी के दरमियान एक पुरफितन और उमीक़ तजुर्बा फराहम करते हैं। साफ़ नीले आसमान के मुकाबिल चट्टानों के मुतहर्रिक रंगों के तजाद से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा था। इस दिलकश मंजर के दरमियान में वो एक गहरे भूरे रंग के बेहद खूबसूरत घोड़े पर सवार था। उस घोड़े का चेहरा दरमियान में से सफ़ेद रंग का था और ये सफ़ेद रंग नाक और मुंह तक पहुंचकर हल्का हल्का सा भूरा हो जाता। उसके पाँव आखिर से बेहद हल्के से भूरे रंग के थे और ऊपर जाते हुए वो सफ़ेद रंग के हो जाते। उसके बाद फिर से गहरा भूरा रंग उसकी खाल पर दिखाई देता। उस वक्त वो हल्के नीले रंग की जीन्स, सफ़ेद शर्ट जिसके कफ मुड़े थे और ऊपर के 2 बटन खुले थे, उसके ऊपर लेदर की एक स्याह रंग की बास्केट पहने हुए था। पैरों में उसने स्याह रंग के लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे।
स्याह चमकते हुए ग्लासेस के पीछे से उसकी नीली आंखें उसी पर जमी थीं जो उसे सताइशी निगाहों से देख रही थीं। उस वक्त नैना एहसन एक सुर्ख रंग के रेशमी अबाए और स्याह रंग के स्कार्फ में मलबूस थी। चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैली थी। स्याह आंखें अपने सुल्तान पर जमी थीं। वो घोड़े पर सवार उस तक पहुंचा। सुल्ताना ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस घोड़े को। उसने अपने नर्म और मुलायम हाथ से घोड़े के चेहरे को सहलाया और उसकी रेशमी सी खाल को छुआ, फिर मुस्कुरा कर बुर्राक को देखा। ये कितना खूबसूरत है ना, उसने सताइशी अंदाज में कहा तो बुर्राक ने जवाबन ताईदी अंदाज में सर को खम दिया। तुम भी आओ, बुर्राक ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा तो उसकी मुस्कुराहट कुछ मध्यम सी पड़ी। गले में एक गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। नहीं, मुझे नहीं आना, उसने हिचकिचाते हुए कहा। वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। क्यों? बुर्राक के अबरू ना समझी से सिकुड़ गए। बस वैसे ही, मुझे हॉर्स राइडिंग से डर लगता है, उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए कहा। बुर्राक यकदम ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराया। वो काफ़ी हैरान हुआ था। और वो क्यों? लहजे भर के बाद उसने पूछा। नैना के जहन के पर्दों पर यकदम कुछ जगमगाया। ये मंजर एक पार्क का था जहाँ हर तरफ खूबसूरत से घने दरख्त फैले थे। एक तरफ बहुत से झूले लगाए रखे गए थे जिस पर बच्चों का खासा रश था। साथ ही कुछ कदमों के फासले पर 3-4 बेंच पड़े थे जिनमें से 1-2 खाली थे और कुछ पर बच्चे और बूढ़े बैठे थे। ऐसे में उस पार्क के एक तरफ वो और अली साथ खड़े थे। नैना की उम्र उस वक्त 12 साल थी और अली की उम्र उस वक्त 11 साल थी। हलीमा साहिबा गोद में उस वक्त उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को उठाए हुए थीं जो इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए काफ़ी महजूज हो रही थी। वो अरीहा एहसन ही थी। एहसन साहब भी उन सबके साथ ही खड़े थे। सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था जिसने घोड़े को उसकी लगाम से पकड़ रखा था। कुछ ही देर पहले उस घोड़े पर अली सवार था और अब नैना की बारी थी। वो चेहरे से काफ़ी पुरजोश और खुश दिखाई दे रही थी। उसके स्याह बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे थे। उस वक्त वो एक हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस थी। उसी रंग का दुपट्टा उसने गले में मफलर के स्टाइल से लिया हुआ था। वो घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए उस पर धीरे से और एहतियात से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हलीमा साहिबा ने कहा था कि वो उसकी मदद करवाएं लेकिन वो ना मानी। कम ऑन नैना, तुम कर सकती हो, एहसन साहब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। मैं कर सकती हूँ, उसने दिल ही दिल में काफ़ी यकीन से कहा। उसने एहतियात से घोड़े की रकाब में पाँव रखा और उस पर बैठने ही लगी थी, लेकिन वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और सीधा ज़मीन पर मुंह के बल आ गिरी। उसका होंठ भी नीचे से फट गया था। एहसन साहब और हलीमा साहिबा फ़ौरन घबरा कर उसकी तरफ को हो लिए। उसने अपनी आँख से एक आंसू भी नहीं बहाया, बस उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था और ये बात सिर्फ वो जानती थी कि उसका चेहरा तकलीफ़ के मारे नहीं बल्कि शर्मिंदगी के बायस सुर्ख पड़ गया था। उसे यूं सबके सामने गिरकर बेहद शर्मिंदगी हुई थी। दूर खड़े कुछ छोटे बच्चे उसे यूं देखकर तमस्खुर उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। एहसन साहब उसे यही कह रहे थे कि वो बच्चे नासमझ हैं, उन्हें नज़रअंदाज करो, लेकिन उस वक्त उनकी हंसी की आवाज़ उसके कानों में चुभ रही थी और उसकी शर्मिंदगी को मज़ीद बढ़ा रही थी। जब मैं छोटी थी मैंने एक बार हॉर्स राइडिंग की कोशिश की थी, मगर उस वक्त घोड़े पर सवार होते वक्त मैं मुंह के बल जा गिरी थी। आखिरी जुमला उसने कदरे तवक्कुफ से अदा किया। वो अभी भी उससे निगाहें नहीं मिला पा रही थी। तमाम, तो तुम्हें गिरने से डर लगता है? चंद लम्हे बाद बुर्राक ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। नैना का चेहरा हल्का हल्का सुर्ख पड़ गया। ऐसा ही समझ लें, उसने धीरे से शाने उचका दिए। बुर्राक ने एक गहरी सांस अंदर को खींची और फिर कुछ कहने के लिए लब खोले। गिरने से नहीं डरा करते नैना, और माना खेज अंदाज में कह डाला। नैना उसका चेहरा देखकर रह गई, क्योंकि गिरना ही आपको सिखाता है कि जब आपका जिस्म और आपकी रूह जख्मी हो तब कैसे खड़ा हुआ जाता है, उसने ठहर ठहर कर कहा। उसके अल्फाज ने उसके दिल पर बेहद असर किया। ये अल्फाज यकीनन उसके दिल पर एक अनमिट निशान छोड़ गए थे। नैना माना खेज अंदाज में मुस्कुराई। वो अब उसे ही देख रही थी। बुर्राक ने अपना हाथ एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाया। उसने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर उसका हाथ थाम लिया।
یا اللہ میری مدد فرمائیے گا، دل ہی دل میں اس نے کہا۔ گھوڑے کی لگام پکڑنے کے بعد اس نے رکاب پر پاؤں رکھا۔ براق نے ایسا کرنے میں اس کی مدد کی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ اس خوبصورت سے گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ براق کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس بار وہ اپنا توازن برقرار رکھ پائی تھی کیونکہ اس بار اسے گرنے کا ڈر نہیں تھا، اور پچھلی بار اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے ایک بار بھی اللہ کو نہیں پکارا تھا۔ اس بار اس نے اللہ کو پکارا بھی، اور اسے یہ یقین بھی تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ آج گرے گی نہیں، اور اگر گر بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کو عروج اور زوال دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو گراتا ہے اور گرانے کے بعد کھڑا بھی کرتا ہے۔ اس خوبصورت اور پرفتن وادی کے درمیان وہ دونوں اس گھوڑے پر سوار تھے۔ براق نے گھوڑے کی لگام سنبھال رکھی تھی۔ وہ ارد گرد کی گلابی اور سرخ سی چٹانوں کو گزرتا دیکھتے ہوئے بے حد محظوظ ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ براق سے ان چٹانوں اور اس جگہ کے بارے میں کافی تجسس سے بہت سے سوالات پوچھتی۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب دیتا۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی کہ براق کو اس جگہ کے اور اس کی تاریخ کے بارے میں کافی علم تھا، اسی لیے وہ اس کے ہر سوال کا جواب کافی آسانی سے دے رہا تھا۔ فضا میں رقص کرتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی سرسراتی آواز پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس ہو رہی تھی، اور یہ ٹھنڈی ہوا پہلے سے تیز بھی ہو چکی تھی۔ وہ گہرے بھورے رنگ کا گھوڑا اب پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ سلطان اور سلطانہ کے چہروں پر ایک بے حد خوبصورت اور مسرت سے بھری مسکان پھیلی تھی۔ دونوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فضا میں ان کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز بھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ رقص کر رہی تھی۔ 2 سال بعد استنبول، ترکیے۔ یہ نومبر کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا بے حد کرکری اور پرجوش تھی۔ سورج دھیرے دھیرے طلوع ہوا تو باسفورس اور تاریخی اسکائی لائن پر سنہری سی رنگت چھا گئی، بشمول میناروں اور قدیم گنبدوں کے سیلیوٹس۔ ایسے میں اس سلطان کے محل میں نگاہ دوڑاؤ تو اوپر والے پورشن میں سلطان اور سلطانہ کا کمرہ دکھائی دیتا، جو اب صرف ان دونوں کا کمرہ نہیں رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی فون کان سے لگائے حلیمہ صاحبہ سے ہمیشہ کی طرح بے حد خوش دلی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال کیچر میں بندھے تھے، بالوں کی 2-3 لٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ اس وقت وہ ایک لمبے سے ریشمی فراک اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو نینا؟ ہم سب یہاں تمہیں، بلکہ تمہیں اور براق کو چھوڑو، ہم سب ارسلان اور نائمے کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ارسلان اور نائمے پر کافی زور دیا۔ نینا نے حیرانی سے ابرو اچکائے۔ امی؟ اور پھر قدرے بلند آواز میں کہا جیسے وہ ان کی بات سن کر کافی حیران اور ناراض بھی ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ بیڈ پہ نگاہ دوڑاؤ تو ایک ننھا سا وجود ہلکے گلابی رنگ کے پورے آستینوں والے چھوٹے سے فراک اور اسی رنگ کے چھوٹے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سی تھیں، بالکل براق کی طرح۔ چہرے کا رنگ سفید گلابی سا تھا اور اس کے تیکھے نقوش براق پہ گئے تھے، لیکن اس کی رنگت زیادہ نینا سے ملتی تھی۔ نرم ملائم سے بال سیاہ رنگ کے تھے، بالکل نینا جیسے۔ وہ نائمے براق تھی، سلطان اور سلطانہ کی شہزادی۔ اس کا نام نینا نے رکھا تھا۔ نائمے کا مطلب خوشی یا سکون ہے، اور چونکہ اس کی پیدائش پر وہ سبھی بہت خوش ہوئے تھے اور جیمرے خاتون کو اس میں میرائے کا عکس دکھائی دیتا، اسی وجہ سے انہیں بے حد خوشی اور سکون ملا تھا، اور اسی لیے نینا نے اس کا نام نائمے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ننھا سا وجود لیٹا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی چھوٹی سی شرٹ اور اسی رنگ کے چھوٹے سے ٹراؤزرز میں ملبوس تھا۔ اس کے نقوش بھی براق کی طرح تیکھے تھے، رنگت بھی براق کی طرح ہی بالکل گوری گوری سی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور گہری تھیں، لیکن ان کا رنگ سیاہ تھا، بالکل نینا جیسا۔ اس کے بال سنہرے رنگ کے تھے، بالکل براق کی طرح۔ یہ ارسلان براق تھا، سلطان اور سلطانہ کا شہزادہ۔ ارسلان کا مطلب شیر ہے، اور اس کا نام براق یامان نے رکھا تھا۔ یہ دونوں ٹوئنز تھے۔ وہ دونوں ابھی تقریباً 9 ماہ کے ہوئے تھے۔ نائمے ارسلان سے صرف کچھ منٹ پہلے ہی پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ چند منٹ کے حساب سے اس سے بڑی تھی۔ جیمرے خاتون تو ان دونوں کی پیدائش پر اس قدر خوش تھیں کہ ان کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے۔ انہیں ارسلان اور نائمے دونوں بے حد عزیز تھے،
لیکن نائمے سے انہیں اسلان کی نسبت کچھ زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں نائمے میں میرائے کا عکس دکھائی دیتا۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی ہی تھیں، اسی لیے انہیں نائمے میرائے جیسی لگتی۔ ان کی پیدائش کے 2-3 گھنٹے بعد سلطانہ نے سلطان سے ایک مطالبہ کیا۔ وہ اس وقت اسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔ براق اس کے بیڈ کے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں سفید سی روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ یہ فروری کا مہینہ تھا۔ موسم میں ان کی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سب ترکیے 2 دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کچھ لمحے پہلے ہی اس کمرے سے باہر گئے تھے۔ براق، ایک بات پوچھوں؟ اس نے پوچھا تو براق کھل کر مسکرا دیا۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ تم مجھ سے اجازت مت مانگا کرو، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس نے ذرا سے ابرو اچکا دیے، ساتھ ہی اپنی گود میں موجود اس ننھی سی نائمے کے سر کو سہلایا۔ اسلان اس وقت براق کی گود میں تھا۔ کیونکہ میری سلطانہ پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹک کر کہا تو وہ کھلکھلا کر دلکش انداز میں مسکرا دی۔ تمام۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے میرے لیے گڈ مارننگ کے جو میسیجز سیو کیے تھے وہ کب کیے؟ آپ نے کہا تھا وہ ایک راز ہے، لیکن اب مجھے وہ راز جاننا ہے، اس نے اصرار کیا۔ وہ اب ترک زبان بولنا سیکھ گئی تھی۔ تمام، چلو تمہیں آج یہ راز بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، پھر اسلان کو گود میں لیے نینا کی جانب بڑھا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا اس وقت میں سارا وقت انٹرنیٹ پر گڈ مارننگ میسیجز اور شاعری سرچ کرتا رہا۔ اس رات میرے خیال سے میں نے کوئی 3-4 ہزار پوسٹس ہی ڈھونڈی تھیں۔ پھر جب بھی مجھے وقت ملتا میں تمہارے لیے اس طرح کی پوسٹس ڈھونڈ کر سیو کر لیتا، اور ابھی بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس نے نائمے کو بھی نرمی سے اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا۔ نینا اس کی بات سن کر ہکا بکا سی رہ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آج بھی بالکل ایک دیوانہ لگ رہا تھا۔ تو اب آپ کے پاس میرے لیے کتنے گڈ مارننگ میسیجز اکٹھے ہو گئے ہیں؟ اس نے تجسس کے عالم میں پوچھا۔ زیادہ نہیں، صرف 5 لاکھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کچھ ہی دنوں میں 6 لاکھ ہو جائیں گے۔ تمہارے موبائل کی میموری اتنی ہے نا کہ وہ اتنے سارے میسیجز سیف رکھ سکے؟ وہ بالکل حیران رہ گئی تھی، اور اسی حیرت سے مسکرا کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ براق کو نائمے اور اسلان کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی، ساتھ ہی دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں بیٹا، ہم سب تم سب کو بہت مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی مصنوعی خفگی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی، اور اس نے پیار سے نائمے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسلان کے گال بھی نرمی سے سہلائے۔ وہ دونوں بچے خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ امی، ابھی پچھلے مہینے تو میں پاکستان آئی تھی براق کے ساتھ، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئی، اس نے انہیں باور کرایا۔ اچھا بتاؤ نا کب آ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی بات مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ امی، ابھی تو براق کو چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ اوہ، اسے ان کے لہجے میں تعصب محسوس ہوا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں براق سے بات کروں گی، آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، اس نے انہیں تسلی دی۔ اس نے انہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی، یہ سچ تھا کہ براق اسے کبھی انکار نہیں کرتا۔ معلوم ہے، اللہ تمہیں اور براق کو ایسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، انہوں نے شفقت سے بھرے انداز میں دعا دی۔ آمین، اس نے جواباً ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے اسلان اور نائمے سے ویڈیو کال کروانا دوپہر میں، جانتی ہو نا انہیں دیکھے بغیر میرا دن ہی نہیں گزرتا، انہوں نے اسے قدرے تحکم سے کہا۔ نینا کھلکھلا کر ہنس دی۔ جی میں ضرور آپ کی ان سے ویڈیو کال کرواؤں گی، آپ بے فکر رہیے، اس نے انہیں یقین دلایا۔ کچھ دیر مزید وہ ان سے بات کرتی رہی، اور پھر فون بند کرنے کے بعد اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل رکھا اور پھر باری باری نائمے اور اسلان کے ماتھے کو چوما۔ دیکھو ذرا، تم لوگوں کی نانو مجھ سے زیادہ تم لوگوں سے پیار کرتی ہیں، پھر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی تو وہ دونوں ابھی بھی خلا میں ہی کچھ دیکھ رہے تھے،
असलान साथ साथ अपना दाएं हाथ का अंगूठा मुंह में डाले हुए था। नैना ने नरमी से उसका अंगूठा मुंह से निकाला। और वो बिल्कुल सही करती हैं, तुम दोनों हो ही इतने प्यारे। वो अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे टिकाए उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। हलीमा साहिबा को कॉल करने से पहले उसने उन दोनों को सर पर टोपी पहनाई थी, लेकिन उन दोनों ने कुछ ही लम्हे बाद टोपी उतार दी। नैना ने एक बार फिर उन दोनों को बारी बारी सर पर टोपी पहनाई। नैना, चंद ही लम्हे बाद उन्हें जैमरे खातून की आवाज़ आई तो वो एकदम अपना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उठी। चलो उठो तुम दोनों जल्दी से, आने बुला रही हैं। उसने नायमे को उठाया, फिर असलान को। अपने बाजुओं में उन दोनों को थामे हुए उसने बारी बारी उन दोनों को मुस्कुरा कर देखा। फिर नायमे के माथे को चूमने लगी कि तभी असलान ने उसके चेहरे पर गिरी बालों की लट अपनी गिरफ्त में ले ली। नैना ने अबरू उचकाकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए जैसे मुस्कुराई, जैसे उसे कह रही हो कि बाल छोड़ो। उसने जिस बाजू में असलान को लिया हुआ था उसी हाथ से बमुश्किल अपने बाल छुड़वाने चाहे, लेकिन असलान की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। असलान, मेरे बाल छोड़ो। असलान, क्या कर रहे हो? असलान। जब वो उसके बाल नैना की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर रहा था तो वो गुस्से से चिल्लाई। उस कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला था। बुर्राक, जो उस वक्त स्याह रंग की शर्ट और स्याह रंग की जीन्स में मलबूस था, यह देखकर तेज़ कदमों के साथ उसकी जानिब बढ़ा। उसने असलान का हाथ पकड़ा। असलान ने एक नज़र अपने बाप को देखा। वो अभी भी उसके बाल अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर रहा था। बुर्राक ने उसके हाथ से उसके बाल छुड़वाना चाहे, चंद लम्हे की कोशिश के बाद ही उसने उसके बाल छोड़ दिए। असलान की गिरफ्त वाकई काफ़ी मजबूत थी। बुर्राक ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। नैना ने अब सुख का सांस लिया। बुर्राक ने असलान को उसके बाजू से निकालते हुए अपने दोनों हाथों में लिया और उसका चेहरा बिल्कुल अपने सामने किया। ये क्या कर रहे हो तुम असलान? हाँ? और फिर अबरू सुकेड़ कर कदरे सख्ती से कहा। असलान की आंखें भर आईं। नैना के दिल को कुछ हुआ और वो तभी उसकी तरफ बढ़ी। बुर्राक, आराम से, दें इसे मुझे, उसने काफ़ी गुस्से से कहा और असलान को बुर्राक के हाथों से लेना चाहा, लेकिन बुर्राक एकदम पीछे हुआ, यूं कि उसे असलान को लेने से मना किया हो। नैना निचला लब दबाते उसका चेहरा घूरने लगी। वैसे जब तुम खुद इन्हें डांट दो तो ठीक है, और जब मैं इन्हें तुम्हारी वजह से ज़रा सा डांट दूं तो इतना गुस्सा, वल्लाह वल्लाह, उसने अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और अब वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों में नायमे को थामा हुआ था। राख ने मुस्कुरा कर नायमे के नर्म से गुलाबी रुखसार सहलाए। वो खुलकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर बुर्राक भी दिल खोलकर मुस्कुराया। क्योंकि मैं माँ हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे बच्चों को डांटे, उसने खफा खफा से अंदाज में कहा। और इनकी माँ होने से पहले तुम मेरी बीवी हो और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ दे। उसका लहजा दो टोक था। उफ़ अल्लाह, एक तो आप और आपकी बातें। वो सर झटकते हुए असलान को, जो उसे देखकर बार बार दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था, उसे बुर्राक से लेना चाहा, लेकिन बुर्राक ने उसे पीछे कर दिया। मैं लेकर जा रहा हूँ ना, उसने नरमी से कहा तो जवाबन उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन तभी नायमे ने मुस्कुरा कर दोनों हाथ बुर्राक की तरफ बढ़ाए। ऐसा करो, तुम इसे पकड़ो और नायमे को मुझे दे दो। बुर्राक ने असलान को नैना को पकड़ाया और ख़ुद नायमे को अपनी गोद में ले लिया। नायमे खिलखिला उठी। कैसी है मेरी नायमे, कितनी प्यारी लग रही हो, ऐ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसने उसके माथे को चूमा। चलो अब बाबा आने के पास चलते हैं, वो अपनी नायमे को बुला रही थी। और वो ये कहता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। नैना उन दोनों को मुस्कुरा कर देखती रही। चलो अब हम भी चलते हैं, उसने असलान को देखते हुए कहा और फिर प्यार से उसकी छोटी सी उठी हुई नाक छुई। फिर वो भी कमरे से बाहर जाने लगी। उनके कमरे की सिंगार में इसको देखो तो अब वहाँ पहले की तरह परफ्यूम्स और मेकअप वगैरह नहीं सजा था, बल्कि उन्हें सिंगार में इसकी तराजों में मुंतकिल कर दिया गया था। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि नायमे और असलान को जब भी यहाँ से ले जाया जाता तो वो हाथ मारकर कुछ ना कुछ ज़रूर गिरा देते या फिर उसे पकड़कर किसी खाने वाली चीज़ समझकर मुंह में डाल देते। जब बुर्राक नायमे को लेकर नीचे लिविंग रूम में गया तो उसने देखा कि जैमरे खातून उस दीवार के सामने खड़ी थीं, जिस पर अब कई तस्वीर खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम्स में सजी हुई थीं। उनमें से एक तस्वीर मीराए यामान की भी थी, बल्कि मीराए की उधर और भी बहुत सी तस्वीर थीं। उस दीवार पर नैना और बुर्राक
نائمے اور اسلان، جیمر خاتون، میرائے اور یامان بے، ان سب کی تصویریں موجود تھیں۔ براق نائمے کو گود میں لیے جیمر خاتون کے پاس بڑھا۔ وہ اس وقت نم آنکھوں کے ساتھ میرائے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں کافی بڑھ سی گئی تھیں۔ انہوں نے یکدم براق کو دیکھا اور پھر اس کی گود میں بیٹھی اس پیاری سی اور معصوم سی نائمے کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا اور باری باری اس کے گلابی سے رخسار چومے۔ اگر میرائے زندہ ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی نا۔ انہوں نے نم سے لہجے میں ہلکے سے مسکراتے ہوئے براق سے کہا اور میرائے کی تصویر دوبارہ سے دیکھنے لگی۔ نینا بھی اب اسلان کی گود میں اٹھائے ان کے پاس آ گئی تھی۔ آنے، میرائے واقعی بہت خوش ہوتی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اب بھی جہاں ہے وہاں وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوگی، اس نے کہا تو جیمر خاتون نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کی آنکھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو لڑکھڑاتا ہوا گال کو چھو گیا۔ اور آپ کو اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ یقیناً بہت ناراض ہوتی ہوگی۔ اس نے انگلی کے پور سے ان کے گال پر چمکتے ہوئے اس آنسو کے قطرے کو صاف کیا۔ وہ جواباً مسکرا دیں اور پھر نینا کی گود میں سے اسلان کو لیتے ہوئے میرائے کی تصویر دیکھنے لگیں۔ اس تصویر میں میرائے کو ترکیے کی بیسٹ سوشل ورکر کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ اس چمکتے ہوئے ایوارڈ کو تھامے خوشی اور تشکر کے باعث نم آنکھوں اور ایک دلکش مسکان کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب پلٹیں اور نائمے اور اسلان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھیں۔ براق اور نینا وہیں کھڑے رہے اور رخ موڑ کر جیمر خاتون کو دیکھنے لگے جو بالکل بچوں کی طرح نائمے اور اسلان سے خوش دلی سے باتیں کر رہی تھیں۔ جیمر خاتون نے اس دن سے مراد کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا جس دن سے انہوں نے اس کے متعلق نیوز میں وہ خبر سنی تھی۔ وہ اب مراد کو برا بھلا تو کیا، اس کا نام تک نہیں زبان سے نکالتی تھیں۔ براق سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے جانتا تھا۔ اگر انہوں نے اسے معاف نہ کیا ہوتا تو وہ ضرور اسے برا بھلا کہتی۔ براق خوش تھا کہ انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ اسے ان سے یہی توقع تھی۔ اسے بہادری اور ذہانت اپنے باپ یامان بے سے ملی تھی، لیکن اسے رحم دلی اپنی ماں جیمر خاتون سے ہی ملی تھی۔